Sir, about the project and about the star cast of the project and what is the theme of the project, please? So thank you everyone to be here. First of all, I'm Yuvraj Kumar. I'm directing a film. It's titled Comic. So Comic is actually the highest town in the world, which is in Himachal, and we are proud that we have the highest town in the world. This is the cast. A film is all about addressing the issue of global warming, and this is a new cast, as you can see. Very talented actor, actresses, and they are taking this journey, from using fossil fuel based vehicles to rollerblading, skateboarding, and bicycles. They come from really really rich families. They're somebody who use the best sports cars like Ferrari, Lamborghini, and how they transform from realizing that it's not the right thing for the environment. They start using hybrid cars, and they get into again the eco-friendly ways of transportation and electronic cars. So let's meet the actors who are really really talented, who are the you can say young talent of our country. We need them to do good work. We need to give the people of India new faces. Again, amazing work by these new people, right? And we are a huge nation, and being a huge nation, we have so much of talent, and we can offer so much to the entire country. So let's begin with our talent. Okay, over to you. Let's start with you. Yes, start. What's up, guys? My name is Jay, and yeah, it's my first film. Really excited for it, and so I'm gonna be performing a lot of stunts with my rollerblades in the film, and I'm really excited to show you guys what we've got. And you, ma'am. I'm Zoe Siddharth. I'm actually a musician, so this is my first film as well. And I'll be bringing music into my character a lot, which is great. So definitely a connect, and I'm super excited for this film because there's so many stunts. There's going to be music. There's going to be a lot of creative aspects. Yeah. Hi, I'm Tanisha. So initially they found me for this film because I make my little videos on Instagram where I play these characters and I try my best to make everyone around me laugh, and that's exactly what they were looking for in my character Khushi for this movie. She's this funny girl, बहुत शोर मचाती है, she dances a lot, she's very cute, and I'm so excited to play her role. And yeah, I hope you all love the movie because it's for a good cause and it's all young people. So I just hope it's very exciting for everyone as much as it is for all of us here. Hi, I'm Vidya, and actually I'm a dancer, and in this movie मैं डांसर का रोल ही प्ले कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा डांस बहुत अच्छा लगे एंड या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. So hi everyone, this is Venkatesh Pandey. I'm basically a dancer and actor as well, but in this movie I'm playing a character of magician, in which I'll be performing magic tricks, and I'll like to show everyone how the magic works and how in this film I'll be doing the magic and showing you how the nature changes. With like we all people have different abilities, different skills, by which we'll try our best to tell people that global warming is really an issue we should look at. So really excited for the movie. We are doing lots of hard work for this. Thank you. Yeah. तो युवा जानना चाहूँगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है. हाल ही में आप देखने तो उत्तराखंड में जो हुआ था घटना, तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के विषय पर क्या आपको प्रेरित किया, और खुद के बारे में बताइए कि आपने कभी इस तरह की घटना को देखा है खुद आंखों से. तो पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर प्लानट. ये तो हम सबको मालूम है. लॉकडाउन में हमने देखा कि व्हेन द एंटायर ह्यूमैनिटी वाज बिहाइंड देयर डोर्स इनसाइड द हाउस, हमने देखा कि एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो चुका था. मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिवर गंगा को क्लीन करने में लगाते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन में फिर से द रिवर रिवाइव्ड इटसेल्फ. और ये जो उत्तराखंड का इंसिडेंट हुआ, इट्स ऑल अबाउट हीटिंग अप ऑफ हिमालयाज. तो हिमाचल हैज़ अ कनेक्शन, राइट? इट्स द पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज. तो एक्चुअली हमारे फिल्म में ये इंसिडेंट है जो अभी हुआ उत्तराखंड में. ये लोग सारे उत्तराखंड का जो डिजास्टर है
वो देखने जाते हैं और पीपल को हेल्प करने जाते हैं. ये भी एक टर्निंग पॉइंट है इनकी कैरेक्टर में कि ये लोग बोलते हैं कि वाओ ये तो बहुत बहुत क्रेजी, बहुत डेंजरस है एंड वी हैव टू टेक एन एक्शन. सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने बहुत हिमाचल में शूट किया और इतने सालों से जब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और अभी आप देखोगे बहुत फ़र्क है. यू नो लाइक इट्स मोर हीटर, इट्स वेरी डेंजरस फॉर हिमालयस. और ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हॉलीवुड में लार्जर लाइफ इमेज क्रिएट किया जाता है फिल्म के माध्यम से, जी. हिंदी फिल्मों में इतना आसान नहीं होता, तो कैसे वो क्रिएट कीजिएगा कि लोग बहुत आकर्षित हो इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए? तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोग शूट करने वाले हैं हिमाचल और उत्तराखंड में, हिमालय रेंज है. ये हिमालय रेंज एज यू नो इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. सारी वर्ल्ड के आइज़ है हमारे यू नो दिस नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड पर. तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्लोबल इशू एज वेल. और ये फिल्म में ये जो जर्नी आप देखोगे, हमारे सारे जो एक्टर्स हैं दे रिप्रेजेंट द यूथ. इसमें से काफ़ी लोग यूएस और यू नो सिंगापुर यहाँ पर पढ़ाई कर चुके हैं. यू नो तो इट्स अ वेरी ग्लोबल फिल्म. और ये जो फिल्म है ये एक्चुअली वर्ल्ड अटेंशन में आएगी बिकॉज ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. तो आज की शेड्यूल करना चाहेंगे, आज जो आप शूट करते हैं क्या शेड्यूल है, क्या पर्टिकुलर शूट होने वाला है? तो आज तो ऑफ कोर्स हम यहाँ बॉम्बे में हैं. बॉम्बे में हम लोग इंटीरियर रूम्स की शूटिंग कर रहे हैं. हम लोग दिखा रहे हैं कि ये रूम्स एक्चुअली यू नो आर इन हिमाचल. तो वो हमारा ये फर्स्ट शेड्यूल है और इसके बाद अगले महीने हम 1 महीने के लिए हिमाचल में शूट करेंगे. तो पर्टिकुलरली आपका उद्देश्य यही है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को संदेश देना है कि पॉल्यूशन कम करें, या कोई और एंगल है इस मूवी में कि एक ही एंगल पे फोकस करने वाले हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यू नो इट्स अ फिल्म विद अ कॉज. तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के इशू को हमें एड्रेस करना है फिल्म के जरिए, और क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर करने के लिए. तो ये फिल्म में हमने काफ़ी अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है. और इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ यंगस्टर्स. यू नो these youngsters are the you know future generation of our country. और ये जो यंगस्टर्स की जर्नी है लोग रिलेट कर पाएंगे इससे. और आखिर में जो फिल्म में होता है आई एम श्योर इट्स बी एन इंस्पिरेशन टू इंडिया एंड द वर्ल्ड यू नो टू गिव अप द यूज ऑफ यू नो fossil fuel based vehicles, switch on to more electronic ways, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स. और उससे भी बेहतर है बाइसिकल्स, रोलर ब्लेडिंग, स्केट बोर्डिंग. यू नो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है. इट्स वेरी स्टाइलिश. आप देख सकते हैं एवरीवन इज वेरी स्टाइलिश. आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग अब्रॉड में पढ़ाई किए हैं तो नॉलेज जो है इसको लेकर काफी होगी कि आपके नज़र में क्या है ग्लोबल वार्मिंग का इशू कितना गंभीर है, और आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे अगर कंट्रीब्यूट करना हो तो? So, as we just faced an incident in Uttarakhand where the glacier actually melted. So, the issue is right in front of us and we can see it happen. We're going through it right now. And according to me and according to what we have studied, we really have to start taking steps from now on. Otherwise, it's going to be too late to save our environment. आपसे जानना चाहूंगा, आप कितने एक्साइटेड हैं एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस इशू को लेकर एज एन आर्टिस्ट? I think this topic is something that everyone knows about, but a lot of people don't actually do anything, including myself. And it's something that's actually really affecting our planet. And exactly like this Uttarakhand incident, only after we realized the consequences of what happens, like 70 to 100 people died in this incident. It's just going to get worse if we don't do anything about it. And in this film, like, we are trying to show that maybe even us as young kids can do something about it. You know, hopefully it's just a step in showing other people that they can also take this step and maybe things will get better, because we have to do something. Otherwise, the planet is just going to go into a very bad situation. आपकी थॉट क्या है इस सब्जेक्ट को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, और ओवरऑल जो आप पार्ट प्ले कर रही हैं तो क्या है? तो जैसे जोई ने कहा है, हम बचपन से सीखा गया है कि यू नो यू आर सपोज टू केयर अबाउट द एनवायरनमेंट, लाइट बंद करो, पर हमने कभी फॉलो किया ही नहीं. मैं भी, नोबडी इज एवर फॉलोड दिस. इसलिए वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ. ऐसे कि नहीं कल जाओ और सब कुछ गिव योर हाउस अवे, गिव इलेक्ट्रिसिटी अवे, गिव दैट अवे. यू नीड टू स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस, एंड these little things make big differences. So that's why I feel like my character खुशी पहले मूवी में बोलती है मुझे नहीं करना है, मैं क्यों कर रही हूँ, है ना, क्योंकि सब ऐसे सोचते हैं. कोई बात नहीं, सोच सकते भी हो, but then
हम इन्वायरमेंट से कितना लेते हैं पर वापस कुछ देते ही नहीं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स एंड देन यू ओनली फील लाइक अ बेटर पर्सन। व्हाट्स योर थॉट, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? लाइक हमें पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो हम सोचते हैं हाँ हम सही करेंगे करेंगे, बट फिर एक दो दिन उसको फॉलो करते हैं फिर छोड़ देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है हमारी मूवी में जो भी हमने किया है अपने नेचर के लिए, लोग उसको देख के लाइक थोड़ा हो सकता है वो लोग कुछ सीखें, वो लोग भी उस चीज़ को फॉलो करें, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मतलब क्लीन होगा और जो प्रदूषण होता है पूरे शहर में वो भी थोड़ा सही हो सकता है अगर लोग उस चीज़ को फॉलो करें तो। हमारा मेन मोटिव ये मूवी से यही है कि लोग जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं जिससे बहुत पोल्यूशन होता है, जिससे बहुत CO2 रिलीज़ होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है और जो UV रेडिएशन है उसमें भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है तो ये क्यों हो रही है, तो ये सब चीज़ें होने के बाद हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। अगर हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर शायद ही हम अपने प्लैनेट अर्थ को बचा पाएंगे। इट्स लाइक वेरी सीरियस इशू वी हैव टू लुक एट। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि हम लोग स्पोर्ट्स कार, हम सब रिच किड्स हैं एंड वी यूज़ आवर स्पोर्ट्स कार्स एंड एवरीथिंग। हम सब जैसे हम लोगों ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने लाइफ्स में बिजी होता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये भी कि जिससे हम सब कुछ ले रहे हैं, इवन द वाटर वी ड्रिंक, खाना, सब वेजिटेबल, सब कुछ हम जिससे ले रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे तो कब स्टार्ट करेंगे? फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हम नहीं बचा पाएंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। एंड ये मूवी के बाद जब ये रिलीज़ होगी तब हम यही चाहते हैं कि सब लोग ये मुद्दे पर थोड़ा गौर करें और व्हीकल्स का यूज़ कम करके जो बाइसिकल्स होते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो स्टाइलिश नहीं है, बाइसिकल्स आर ऑल्सो स्टाइलिश। और कोई ये ना सोचे कि बाइसिकल चलाने में शर्म है या फिर स्केटबोर्डिंग, रोलर बोर्डिंग करने में कुछ शर्म है, ऐसा कोई ना सोचे। सिर्फ यही मोटिव है हमारा ये मूवी से। लास्टली ये जानना चाहूँगा युवराज कि आज के ज़माने में भी व्यूअर्स जो जाते हैं वो चेहरा देख के जाते हैं थिएटर में। जी। जो बड़ा चेहरा होता है, बड़े डायरेक्टर्स, बड़े प्रोड्यूसर्स, अच्छा म्यूजिक, सब कंपटीशन रहता है। आप इस तरह का सब्जेक्ट बना रहे हैं, आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बना के? See, actually, you know, ट्रेंड चेंज होना चाहिए, you know. That's not the way you look at. बड़ा मतलब क्या? It's not about how big it is. आप कितने एजुकेटेड हो, कितने ट्रेंड हो, कितने टैलेंटेड हो, दिस इज द पैरामीटर टू मेजर। बड़ा मतलब क्या? यही बड़ा है। मैंने इससे अच्छी सिंगर नहीं देखी अभी तक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो स्टंट्स करते हैं, यू विल बी शॉक्ड, यू नो। शी इज सो पॉपुलर विथ यंगस्टर्स, इनकी जो कॉमेडी इज सो गुड। सो आई थिंक आई एम वर्किंग विथ वेरी टैलेंटेड पीपल। ये सारे बहुत टैलेंटेड है और कहीं ना कहीं, यू नो, मासेस दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी न्यू पीपल, यू नो। एंड ये जो अभी बड़ा, व्हाट इज बड़ा? आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो। इट्स जस्ट सम काइंड ऑफ अ फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। आई थिंक टैलेंट सबसे बड़ा होता है, यू नो। जो भी टैलेंटेड है, जिसे भी लोग पसंद करेंगे, यू नो, दे शुड डू वेल एंड दे विल डू वेल, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आर्ट, राइट? आर्ट, क्राफ्ट, फिल्म मेकिंग, यू नो, वो अपने आप सारे मासेस के साथ एनर्जी रेजोनेट होगी, यू नो। और मैं हमेशा नए लोगों के साथ ही काम करूंगा, बिकॉज our country is more than 130 crores. Imagine the amount of talent we have, you know. So 7-8 people in the industry, you know, is not fair. It's not fair at all. So बहुत मुझे विश्वास है ये सारे टैलेंट पर, and I'm sure कि मैंने कोई रिस्क नहीं लिया है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और the entire masses of India will support us and will make sure that our film makes really, really good profits and they will like the film, get affected by the movie और बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और एंटरटेनमेंट भी है, तो बहुत स्टाइल है, बहुत डांस है, और जस्ट सी द फेसेस यार, दे लुक सो गुड, यू नो। आप, यू आर फ्रॉम द मीडिया, आप इतने इंटरव्यूज करते हो, ये कोई किसी से कम है क्या? यू नो, दे आर सो यंग, दे आर सो ब्यूटिफुल एंड आई फील दीज आर द स्टार्स ऑफ द फ्यूचर, यू नो। सो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया है, बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत मजा आने वाला है। एंड अभी तो हम मिलेंगे और, बिकॉज अभी तो जर्नी शुरुआत है फिल्म की। रेडी होगी फिल्म, यू नो, रिलीज डेट्स आएंगे, फिर फिल्म बनेगी और रिलीज में सारे लोग देखेंगे उसके बाद। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो। थैंक्स अ लॉट।
before we go, I really want, because the first time we have talent, I want you guys to showcase your talent a little bit to the media, so they know whom are they dealing with. ठीक है? Is that fine, guys? हाँ, लेकिन इनका एक टैलेंट है जो मैं थोड़ा, alright? सिंगर है हमारे बेटा, या सी देखिए, ये स्टंट है, ये आपको स्टंट करेंगे, ये सिंगिंग करते हैं, ये कॉमेडी है, कॉमेडी। इनका डांस बहुत अच्छा है और इनका डांस बहुत अच्छा है। पहले सिंगर बैठे तो उनके सूरत वैसे करते हैं, करना है, चलो स्टार्ट जोई, कम ऑन, गो फॉर इट। सर आपका हम लोग यू आर सेइंग समथिंग? पहले सिंगर करते हैं। हाँ करते, मैम गाइए कोई गाना जो आपका फेवरेट हो, जो आपके दिल करीब हो। ठीक है। जी कम ऑन, ये वो starting with you. You make me human once again. You make me human once again. Wow, that's cool. Comedy, come on, yeah. मैं एक लाइन बोलूंगी। हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं एनवायरनमेंट का ही बात करूंगी। एनवायरनमेंट ना शादी जैसी होती है। एनवायरनमेंट बस हमें देता है, हम वापस नहीं देते हैं, तो शादी समझे? बीवी है कि नहीं? एक जॉब बीवी है और एक हाँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आया ना। चलिए मैम आप बताइए। मैं तो डांसर हूँ। ठीक है आपका चलिए ओके डन डन। आप भाई मैं भी डांस कर, चलो भाई आइए जरा हाँ खड़े हो। सही सही तो सन में आ रहा है, यहाँ जाओ, यहाँ छाव अपोजिट है छाव पे तेरा। अरे करेगा भाई, चलो चलो क्या बात, एक नंबर। हाँ संभालना भाई, मत लात मत मना कैमरे को भाई। क्या कर रहे हो यार, और करो अच्छी तरह। अच्छा चलो यहाँ से। खोल दो सर, खोल दो, गरम है खोल दो उसको। अरे कोई नहीं सर, सलमान खोलता ना। कोई नहीं, वो तो करो, खोलो सर बस। अभिषेक तू दिख रहा है, चलेगा? कुछ अच्छा नहीं सर, ठीक है तो कॉमन, इससे कॉमन सर, सर इससे कॉमन सर, कुछ और कुछ अच्छा कुछ ये निकाल आपको, ये निकालो निकालो सर आप। सलमान खान क्यों शर्मा रहे हो सर? हम भी यही है सर, हम चलो या रोलिंग। आजकल मुझे क्लिप ही करते हैं। बड़ा क्या बात है भाई। So I am magician. I do like मैं मैजिक कर रहा हूँ पूरे फिल्म में। किसको गायब कर रहे हो? I also dance. I am also a dancer. वाओ, कुछ और दिखाओ आपको। और भी दिखेगी ना। चिकनी चना। गुड 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 गुड। यस सासा कीजिए, हाँ हाँ यस। चलिए मोबाइल में ही गाना बजा दो यार। बाद में बजा, ट्रैक बजा बाद में। उसी आर्टिस्ट के जो बिगेस्ट म्यूजिक की डांस करे, अरे उसी आर्टिस्ट कहते हैं बिगेस्ट म्यूजिक की डांस करे, वो होते असली आर्टिस्ट। ठीक है, तो हम म्यूजिक डाल देंगे, हम डाल देंगे म्यूजिक। चलो म्यूजिक हम डाल देंगे। वो बजा रहे ना, आज ही आप कर रहे हो, चलो करो ना, हम लोग डाल देंगे वहाँ पे। कहाँ? कोरिल बीच में आ रहे हो, आपकी स्टोरी बीच में आ रही है। वाह, कड़क कड़क एक नंबर। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट हो गया या रेडी। ओके थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू। अब एक साथ आइए, एक बार सब आइए। कूदना मत भाई, कूदना मत भाई, प्लीज। चलिए। मुझे पता नहीं, मैं
एक्चुअली अभी क्या करूँ, मैं स्क्रिप्ट बोलूँ तो कुछ ज़्यादा ही नहीं कुछ हाँ कोई आपको इंस्टाग्राम में जो कुछ बहुत फेमस हुआ हो उसका वो कुछ कर दीजिए। अच्छा उसका एक्चुअली उसका ना वो बहुत ओके ओके सोचती हूँ एक सेकंड आराम से टेक योर टाइम एक्चुअली क्या करूँ मैं व्हाटएवर। आप एक अच्छा एक सेकंड नहीं यार कौन से या शादी पा रही हूँ हो गया वो हाँ वही मैं सोच रही हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। आप इतनी सुंदर हो क्या क्या करो वाह। ऐसे मत सोचो। भाई जोक्स बोल देखा इन्होंने कहानी बोली बिल्कुल एक्चुअली ना मेरा सोशल मीडिया पे एक कैरेक्टर है, एक लड़की, फोन मेरा वो एक बॉम्बे वाली लड़की है, बहुत अमीर है, तो मैं उसका कैरेक्टर करूँ? हाँ चलेगा। अरे लड़की चलेगा अमीर हाँ ठीक है। अमीर चलता है गरीब नहीं। पापा प्लीज मुझे गाड़ी अभी चाहिए मुझे गाड़ी प्लीज अभी भेज दो। क्या मतलब? और फिर वो कुछ ऐसे वो जो बॉम्बे में जो जगह होती है ना वो हमेशा जाती है रात भर, तो कहते हैं पता है ना हाँ। तो कहते हैं ये वहीं रहते हैं। पापा जी प्लीज 3 बजे पारी हो रही है, बहुत बड़ी पारी हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। ये समझ में आ गया। आई नहीं बहुत अच्छी। यहाँ पे सेंटर लुक क्यों भाई घर पे सुनो और क्या। लुक क्या अरे दिया ना वहाँ पे लुक भी यहाँ है ना भाई। सभी आप सोच रहे हो परेशान प्रोड्यूसर लोग के साथ में एक सब साथ पूरा ग्रुप आई है। रेडी या सामने देखिए। हाँ आ जाओ पीछे। बहुत बढ़िया हाँ, ये अच्छा। या सेंटर लुक है